پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتے کو منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوئے۔ شہادتوں کے جائزے کے بعد مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے شوال کے چاند کے نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ بنگلہ دیش، بھارت اور ملیشیا میں بھی عید الفطر ہفتے کے روز ہوگی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی خطے میں جاری کشیدگی، خصوصاً ترکیے پر میزائل حملوں کی مذمت۔ پاکستانی قوم مشکل حالات میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن کے فروغ کے لیے ترکیے کے تعمیری کردار کا اعتراف۔ علاقائی صورتحال کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ وزیراعظم نے ترک صدر کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد اور خوشحالی کی دعا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اردن پر ہونے والے حملوں کی مذمت۔ مشکل کی گھڑی میں اردن کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے تحمل، کشیدگی میں کمی اور مسائل کے سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اردن کے شاہ کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس۔ خطے کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ۔ ملکی موجودہ ایندھن ذخائر، کھپت اور کارگوز پر بریفنگ۔ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ خطے کی غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم Today is the time that we should now move faster so that the youth of Pakistan is able to make use of this most modern technology, whether it's IT, whether it's AI. 5G اسپیکٹرم کے لائسنسوں کے اجرا کی تقریب۔ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر IT شعبے میں ملک کا نام روشن کریں۔ ملک کے طول و عرض میں عوام کو ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ امید ہے نوجوان AI سمیت اس جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ آج تک ہم 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہمارے یوزرز ہیں کا انٹرنیٹ ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں تھا۔ آج اس اسپیکٹرم کے ایڈ ہونے سے ہم ریجن میں جو ہے وہ نمبر 1 ہو گئے ہیں۔ پروگریسو تھاٹ لیڈرشپ کی وجہ سے ہم یہ مارکہ جو ہے حاصل کر پائے ہیں۔ پاکستان میں 5G سروس متعارف کرا دی گئی ہے۔ کامیابی وزیر اعظم کی قیادت میں مکمل ٹیم ورک کے باعث ممکن ہوئی۔ 4G کی بہتر سروسز فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں مجموعی طور پر انٹرنیٹ کا معیار بہتر ہوگا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ۔ تقریب میں 3 ٹیلی کام آپریٹرز جیز، یوفون اور زون کو 5G اسپیکٹرم لائسنس جاری۔ نیلامی کے تحت جیز کو اسپیکٹرم کے 190 میگا ہرٹز، یوفون کو 180 اور زون کو 110 میگا ہرٹز دیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف اہم قانون سازی تقرریوں، سول اعزازات اور خصوصی سزاؤں میں رعایت کی منظوری دے دی۔ پاکستان شہریت ترمیمی بل 2026، اخباری کارکنان شرائط ملازمت ترمیمی بل 2026 اور دانش یونیورسٹی اسلام آباد بل 2026 شامل۔ اعزاز اسلم ڈار کی FPSC کے رکن کے طور پر تعیناتی۔ نمایاں خدمات کے اعتراف میں پروفیسر سرور محمد خواجہ، راشد ملک اور زین العابدین احسن کے لیے ستارہ امتیاز۔ عید الفطر اور یوم پاکستان کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی رعایت کی بھی منظوری۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی میں فقہ جعفریہ کے علماء کرام سے ملاقات۔ قومی سلامتی کے امور اور معاشرتی ہم آہنگی میں علماء کے کردار پر تبادلہ خیال۔
फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोके। दहशतगर्दों और उनके नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। हम अपने अदारे पाकिस्तान आर्मी को ये इस चीज की यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर हाल पर जो है अमन के साथ रहेंगे और किसी को भी भूल के खिलाफ होने वाले साजिशों का जो है पूरा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में भी अपनी पाक फोर्सेस के साथ खड़ा है। मैं पाकिस्तानी को पैगाम देना चाहता हूँ, होशियार किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान की सालियत के हवाले से किसी तरह से कोई आवाज नहीं है, हम आपके साथ हैं। उलमा और मशाइख के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद कौमी यकजहती और इत्तेहाद के हवाले से खुसूसी पैगामात। मजहब के नाम पर तशद्दुद की मजम्मत, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए रियासती इदारों की भरपूर हिमायत का इरादा। उलमा और मशाइख के खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। रियाज में इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इलाकाई मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। पाकिस्तान का खित्ते में जारी हमलों को फौरी बंद करने और तनाज़ात के खात्मे का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ मुश्तरका मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ देने के लिए बाहमी अज़्म का इरादा। मुलाकात रियाज़ में मुशावरती इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान ने अमरीकी ओहदेदार के पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों से मुमकिना खतरे से मुतालिक हालिया दावे 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान की तस्वीराती सलाहियतें खालिसतन दिफाई नोयत की हैं। मकसद कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैनुल बर्रे आज़मी हद मार्च से कहीं कम और भारत के मुकाबले में कम अज़ कम काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत के नज़रिए पर मजबूती से कायम है। भारत की मिसाइल सलाहियतें बिलाशुबा खित्ते और इससे बाहर के लिए तशवीश का बायस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान का भारतीय मीडिया पर गर्दिश करने वाले इजरायली सफ़ीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। इजरायली सफ़ीर के बेबुनियाद और मनगढ़ंत किरदार कुशी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। जारहियत और गैर कानूनी तर्ज-ए-अमल का असल रिकॉर्ड दुनिया के सामने आया है। गज़ा में इंसानी अलमिया और आलमी अदालतों में इसराइली क़यादत का ट्रायल असल हकीकत है। ज़िम्मेदार रियासतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन से इन्हिराफ नहीं बल्कि पासदारी करती हैं। इसराइल अपनी जारहियत से तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा ले रहा है। मकबूजा इलाकों में इसराइली गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश कोरंगी में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस हादसात में खवातीन समेत 19 अफराद जाँ बहक। बल्दियात सजनगोट में दीवार गिरने से 11 अफराद जाँ बहक। लांडी, कोरंगी नंबर 5, क्लिफ्टन और मलीर यारोगोट में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। लियारी कांबेला बस स्टॉप के करीब घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला सिंध की साइन बोर्ड्स को हटाने और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। बिजली की बहाली का अमल जारी। बल्दियाती इदारे हाई अलर्ट। एनडीएमए का आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी का अलर्ट जारी। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। कौमी शाहराहों N65, N50 और N70 पर लैंड स्लाइडिंग के बायस आमदरफ्त मुतासर हो सकती है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी जिंदगी और ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ने का इम्कान है। तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। टोलेंटन मार्केट में एवरीथिंग ऑर्गेनिक कैफे बनाने पर इत्तेफाक। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुतासिरीन को मार्केट रेट्स पर अदायगी की हिदायत।
ریاض میں علاقائی سلامتی سے متعلق اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس۔ ایران کے ہمسایہ ملکوں پر حملے اسلامی ملکوں کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ خلیجی ملکوں پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ خلیجی ریاستیں ایرانی جارحیت پر تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ہم سیاسی اور مذاکراتی عمل کو فروغ دینے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی پریس کانفرنس۔ ایران کا قطر کے صنعتی شہر راس لفان میں مرکزی گیس تنصیب پر میزائل حملہ۔ دنیا کے سب سے بڑے LNG پلانٹ کا عملہ محفوظ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطر نے حملے کو قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دے دیا۔ ایران کی خلیج بھر میں تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی، خطے میں کشیدگی میں اضافہ۔ ایرانی سفارت خانے کے فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل کا گزشتہ روز ایران کی توانائی کے اہم ذریعے اور دنیا کے سب سے بڑے غیر ذخائر میں سے ایک جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ۔ توانائی تنصیبات میں مزید حملوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسرائیل دوبارہ ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر ایران دوبارہ قطر پر حملہ کرتا ہے تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ چین اور روس کا ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری چیف علی لاریجانی کی شہادت پر سخت رد عمل۔ علی لاریجانی کا مارا جانا باضابطہ قتل ہے۔ لاریجانی کے قتل نے انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول روند ڈالے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ چین کی بحرانی سیکیورٹی کے قاتل کی شدید مذمت۔ علی لاریجانی کا قتل ناقابل قبول ہے۔ ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل $112 فی بیرل اور WTI $97 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ یورپی گیس کی قیمتوں میں 30% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ اب نئے ہرمز کی ممکنہ بندش کے خدشات، عالمی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی۔ توانائی کے عالمی بحران سنگین ہونے سے عالمی معیشت شدید خطرے سے دوچار ہو گئی۔ तेईस मार्च एक ख्वाब, एक उम्मीद का एक रोशन दिन था। हमारा पाकिस्तान हमारी पहचान है और हमें फख्र है कि हम इस आज़ाद मुल्क का हिस्सा हैं। 23 मार्च یوم پاکستان، تجدید عہد وفا کا سنہرا دن۔ یہ دن برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد اور ایک آزاد وطن کے خواب کی تعبیر کی یاد دلاتا ہے۔ خصوصی پرومو میں شہریوں کا وطن سے محبت اور قومی عزم کا بھرپور اظہار۔ طلباء اور خواتین نے تحریک پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ قوم یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے، تب سے خواتین کا ایک بہت میجر رول رہا ہے۔ ہم نے ہر صدی میں، ہر زمانے میں جو ہے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کام کیا ہے۔ اسپیشلی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت خواتین کی پرسنٹیج ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا ایکسیل کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت اچھے اپرچونیٹیز مل رہی ہیں تاکہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ اپنے کام کر سکیں۔ عید الفطر کی خریداری کے لیے وقت کم، مقابلہ سخت۔ ملک بھر کے بازار خریداروں سے بھر گئے۔ گہما گہمی عروج پر، کوئی کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتوں کی تلاش میں تو کوئی درزیوں کے پیچھے پیچھے۔ عید کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانے کے لیے بچے، بوڑھے، خواتین سمیت ہر کوئی پرجوش۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری۔ بلا جواز کارروائیوں کی وجہ سے ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول۔ بھارتی جبر و استبداد کی کارروائیوں سے کشمیریوں کا جینا دوبھر۔ روزمرہ کی زندگی بدستور درہم برہم۔ ضلع سانبا میں ایک بے گناہ کشمیری گرفتار۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے پرچم، فیلڈ مارشل کی تصاویر والے پوسٹرز چسپاں۔ دنیا انصاف کو یقینی بنائے، کشمیری عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کرے اور انہیں اپنا پیدائشی حق کے خود ارادیت دلوائے۔ بھارتی پولیس نے 3 کشمیریوں پر GPS ٹریکر نصب کر دیے۔ ہاکی ورلڈ کپ کے میچز کا شیڈول جاری۔ قومی ہاکی ٹیم اپنے سفر کا آغاز 15 اگست کو انگلینڈ کے خلاف کرے گی۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ 17 اگست کو ویلز کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا ہائی وولٹیج مقابلہ 19 اگست کو پاکستان اور بھارت کے درمیان شیڈول۔ ہاکی ورلڈ کپ 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈ میں ہوگا۔ ایونٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔
फिर पेशावर पहुंच गई। मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए पेश। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में भी ट्रॉफी देखकर क्रिकेटर्स में जोशो खरोश। PSL 11 26 मार्च से 3 मई तक 6 शहरों में खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह पर इफ्तार डिनर का एहतमाम। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा और मकामी खिलाड़ियों की शिरकत। कलंदर्स ने PSL की तैयारी के लिए इस्लामाबाद में कंडीशनिंग कैंप लगाया था। स्क्वाड 23 मार्च को लाहौर में इकट्ठा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल और खिलाड़ी की खबरें लिए मैं आपके साथ सलमान हैदर, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और खबरनामे के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। जोनल कमेटीज़ के इजलास भी मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में हुए। शहादतों के जायजे के बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने शवाल का चांद नजर न आने का ऐलान किया। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। बांग्लादेश, भारत और मलेशिया में भी ईद उल फितर हफ्ते के रोज होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ। इंतहाई गर्मजोश गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोगान और उनके अहले खाना और बरादर तुर्क अवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की, जिसका सदर एर्दोगान ने भी पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में जारी कशीदगी बिलखुसूस तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत का इयादा किया और कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम इन मुश्किल हालात में अपने तुर्क भाइयों के साथ है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन के फ़रोग के लिए और खुसूसन ईद के अय्याम के दौरान हाल ही में ऐलान करदा आर्जी जंगबंदी के हवाले से तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फरवरी 2025 में सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे पाकिस्तान और उसके बाद अप्रैल और मई 2025 में अपने दौरे तुर्की का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ममालिक तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक रब्ता किया है। खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम, शाही खानदान और उर्दन के बरादर अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। शाह अब्दुल्ला दोम ने भी उनके जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश, इलाकाई कशीदगी के दौरान उर्दन पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए मुश्किल घड़ी में उर्दन के अवाम के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मसाइल के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता नवंबर में शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान को खुशगवार अंदाज में याद किया और पाकिस्तान और उर्दन के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते की तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी के इक़दाम के नफाज पर जायज़ा इजलास हुआ। मशरक़ वस्ती खत्ते के इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा दिनों में ईंधन की बचत के लिए मज़ीद इक़दाम उठाने होंगे। तफसील शाहरुख शफी से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी के इक़दाम के नफाज पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास को मौजूदा मुल्की ज़खायर, खपत और कारगोज पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है और मज़ीद भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इजलास को किफ़ायतशारी और बचत के इक़दाम पर अमल दरामद की पेशरफ्त से मुताल्लिक बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी करदा हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से निगरानी भी की जा रही है और पेट्रोलियम मसनूआत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि किसी किस्म की बेकायदगी की फौरी निशानदही हो सके और सदेबाब के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हदायत की कि सूबों के साथ मिलकर एक जामे लाए अमल मुरतब किया जाए ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि बचत और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। इशराफिया आगे बढ़कर इसार और कुर्बानी के जज्बे को अपनाते हुए बचत और किफ़ायतशारी की मिसाल कायम करे। उन्होंने कहा कि हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। हुकूमत ने आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दामात को अपनाने की भी अपील की है ताकि आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी के मुतासिर होने के खतरे से बचा जा सके। इजलास के एलामिये में कहा गया कि हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा और बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पोलिंग अपनाई जाए, नकलो हरकत इज्तमाही तौर पर की जाए। एलामिये में कहा गया कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और तेल बचाने के लिए आमदो रफ्त को महदूद रखा जाए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ सनत, ज़राअत और IT के शोबों में संगमील की हैसियत रखता है। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के बाज़ाब्ता इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवान इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर IT के शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क के तूलो अर्ज में अवाम को टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी के अमल को मुकम्मल करने के दौरान दरपेश कानूनी चैलेंजेस को खुश असलूबी से हल करने पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। आज के इस जदीद इनकलाबी दौर में 5G स्पेक्ट्रम एक बहुत शानदार इब्तिदा की गई है। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सनत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के हवाले से एक संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोंग और दीगर शराकतदार टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ताउन को सराहते हुए कहा कि मुल्क के नौजवान AI समेत इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मुनफरिद है और इस दोस्ती की एक अहम झलक ये जदीद टेक्नोलॉजी है। I would like to congratulate you. Thank you very much for your hard work and your untiring efforts. And China, Pakistan, as you know, are great friends. I think today is the time that we should now move faster so that the youth of Pakistan is able to make use of this most modern technology, whether it's IT, whether it's AI. विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा 5G सर्विस मुतारिफ कराई गई है। ये कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुकम्मल टीम वर्क के बाइस मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतर 4G सर्विसेज फ्राहम करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं और आने वाले चंद माह में मजमूई तौर पर इंटरनेट का मेयार बेहतर होगा। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की 1990 की दिहाई के अवाइल में हुई। 2004 से 2025 तक स्पेक्ट्रम के हवाले से 4 नीलामियां की गईं। उनका कहना था कि 480 मेगाहर्ट्ज की शफाफ अंदाज में हालिया नीलामी और लाइसेंस के इजरा से पाकिस्तान खित्ते में स्पेक्ट्रम की इस्तेदाद के हवाले से पहले नंबर पर आ गया है। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैज, यूफोन और जोंग को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी कर दिया गया।
पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से उनके नुमाइंदों ने लाइसेंस पर दस्तखत किए। नीलामी के तहत जैज को स्पेक्ट्रम के 190 मेगाहर्ट्ज, यूफोन को 180 और जोंग को 110 मेगाहर्ट्ज दिए गए हैं। 5G स्पेक्ट्रम से सार्फिन को तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मैसर आ सकेगी और मईशत के तमाम शोबों पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने रियाद में अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में इलाकाई ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। उन्होंने खित्ते में जारी हमलों को फौरी तौर पर बंद करने और तनाज़ात के खात्मे का मुतालबा करते हुए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की बहाली के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया गया। इस मौके पर इसराइल की मुसलसल जारहियत और इश्ताल अंगेजियों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई। शहरियों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर भी हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी और माशी चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती के साथ मुश्तरका मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अमन, इस्तेहकाम और इज्तिमाई खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जेहोन मेरामोव से रियाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़िक़्ह जाफ़िया के मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम ने रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें कौमी सलामती के उमूर और माशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा के अहम किरदार पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अपनी सरज़मीन के इस्तेमाल को रोकें। दहशत गर्दों और उनके नेटवर्क्स का जहाँ भी वजूद होगा ख़त्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने उलमा को इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल सिफारती कोशिशों से आगाह करते हुए कहा कि किसी दूसरे मुल्क में पेश आए वाक़यात पर पाकिस्तान में तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। उलमा कराम इत्तेहाद को मजबूत बनाएं और इंतहा पसंदी का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा कराम ने मजहब के नाम पर होने वाले तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा व मशाइख ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफ़ाए वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक अफ़वाज के किरदार को सराहा। उलमा ने कहा कि फ़ितनल ख़ारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से इस वक्त है हम एक मकसद के अनुमान से अपने मुल्क के आला तरीन अदारे, वो अदारा जो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसका दिफा करता है, हम अपने अदारे पाकिस्तान आर्मी को ये इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर महाज पर जो है जंग लड़ेंगे। आपकी जंग नहीं है, वो हम सब की जंग है, वो वतन की जंग है, पहले वतन की जंग है। पाकिस्तान हमारा इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और इसके लिए कुर्बानी को देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी साजिश होगी आप लोगों के साथ खड़े होंगे, ऐसा हमारे पास कोई बुराई नहीं। पाकिस्तान के साथ हमारा जंग शुरू है। हमने अपने फौजियों का इस्तेकामत देखा है कि वो 6 बंदी एक मोर्चे में कितनी लश्कर का मुकाबला कर रहे हैं और उनके हमलों को पसपा कर रहे हैं। हम भी पाकिस्तानी होने पर हमें फख्र है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पहचान पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान का अपना जान भी कुर्बान करेंगे, अपने औलाद भी कुर्बान करेंगे। पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक फ़ख्र है, एटमी ताकत है। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। 27 रमज़ान को कुरान नाज़िल हुआ था और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह में 27 रमज़ान को आता हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारी पाक फौज को पावर दी है। जैसे पिछले साल इंडिया का नाक रगड़ा है और बहुत जलील हुआ, हमें उस पर फ़ख्र है। और पूरा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में भी अपनी पाक फोर्सेस के साथ खड़ा है। इस्लाम दीन अकीदे के बाद हमारे सबसे पहले पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरामदाजी हो रही है और उसके अलावा नकल है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है।
पैगाम देना चाहता हूँ, होशियार किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, इसलिए कि पाकिस्तान की सरजमीन हमें बड़ी अजीज है। फितनत तो खवारिज चाहता है और उसके साथ साथ फितनत चाहता है कि मुल्क को कमज़ोर करे। पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से किसी तरह से कोई आवाज उठती है, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान हमारा है, इस हवाले से कोई बोल नहीं। अगर आप चाहते हैं मुसलमान और इस्लाम महफूज रहे तो पाकिस्तान को कभी भी कमजोर ना होने। हमने पाकिस्तान बनाया था, हमने पाकिस्तान की आज तक हिफाजत की है और इंशाअल्लाह हम जो है वो हर वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। और सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम कानून साजी तकर्रियों, सिविल एजाज़ात और कैदियों के सज़ाओं में खुसूसी रियायत की मंजूरी दे दी है। जिन अहम तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी गई उनमें पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2026, अखबारी कारकुनान की शराइत मुलाजमत का तरमीमी बिल 2026, ज़कात व उशर तरमीमी बिल 2026, नेशनल आर्काइव्स तरमीमी बिल 2026 और पाकिस्तान के नामों निशानात के गैर मजाज इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान कारपोरेशन तरमीमी बिल 2026, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 और दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2026 शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने एजाज असलम डार की बलूचिस्तान के कोटे के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तैनाती की भी मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने नुमाया खदमात के एतराफ़ में प्रोफेसर सरवर मोहम्मद ख्वाजा, राशिद मलिक और ज़ैनुल आबिदीन एहसन के लिए सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ की भी मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में खुसूसी रियायत की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया और मुस्तहक़ीन में रमज़ान पैकेज की तक़सीम में पेशरफ़्त से मुतालिक भी ब्रीफ किया। पाकिस्तान ने एक अमरीकी ओहदेदार की जानिब से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों से मुमकिन ख़तरे से मुतालिक हालिया दावे को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका के डायरेक्टर कौमी इंटेलिजेंस के बयान पर ज़राए अबलाग के सवालात के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान की तस्वीराती सलाहियतें खालिसतन दफ़ाई नौइयत की हामिल है, जिनका मकसद कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो बैनुल बर्र-ए-आज़मी हदमार से भी कम है, भारत के मुकाबले में काबिल एतबार कम अज़ कम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के नज़रिए पर मजबूती से कायम है। इसके बरक्स भारत की जानिब से 12,000 किलोमीटर से ज़ायद हद मार रखने वाले मिसाइल सलाहियतों की तरक्की एक ऐसे रुझान की अक्कास है जो इलाकाई सलामती के तकाज़ों से आगे बढ़ता है और बिलाशुबा खित्ते और इससे बाहर के लिए तशवीश का बायस है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम, अदम इम्तियाज़ और हक़ाइक़ पर मबनी तर्ज़ अमल की बुनियाद पर तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुराज़िम है। हम एक मुतवाज़िन और सोचे समझे अंदाज़े नज़र की ज़रूरत पर जोर देते हैं जो जनूबी एशिया की तस्वीराती ज़रूरियात से हम आहंग हो और पूरे खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआविन हो। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड और ईरान की तवानाई के सबसे अहम जरिए पारस गैस फील्ड्स पर हमले के बाद तेहरान ने सऊदी अरब और मुतादिद खलीजी ममालिक की गैस और तेल की तनसीबात पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने कतर में तेल और गैस की तनसीबात पर मजीद हमले किए तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाहकुन हमले किए जाएंगे। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। इसराइल की जानिब से ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने खलीजी खित्ते में गैस और तेल की तनसीबात के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड रास उल लुफ़ान को बार बार निशाना बनाया गया, जिससे आग भड़क उठी, ताहम आग पर अब काबू पा लिया गया है। जवाब में कतर ने 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की हबशान गैस तनसीब और बाब आयल फील्ड को बंद करना पड़ा और हुकाम के मुताबिक ये नुकसान रोके गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के मलबे से हुआ। कुवैत में ड्रोन हमले के बाद एक ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। सऊदी अरब को भी निशाना बनाया गया, जिसने कहा कि उसने मशरकी इलाकों और दारुल हुकूमत रियाज में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि वो अपनी फौज की मदद से जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान ने कहा है कि अगर इसकी तवानाई की तनसीबात को मजीद निशाना बनाया गया तो वो खलीज में अमरीकी इत्तेहादियों की
तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तबाह कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमले में अमरीका से मुशावरत नहीं की, ताहम अब इसराइल दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान दोबारा कतर पर हमला करता है तो ईरान के पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। इसराइल ने गुज़श्ता रोज ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया था, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस ज़खायर और ईरान की तवानाई का अहम जरिया है। अमरीकी सदर के बयान के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका ने अब तक ईरान में 7,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है और आज सबसे बड़ा स्ट्राइक पैकेज होगा। उनका कहना था कि अमरीकी अहदाफ में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाई सनत और इसकी बहरिया को तबाह करना शामिल है। अमरीकी सदर के मुस्ताफी होने वाले सलामती के मुशीर ने CNN को इंटरव्यू में एक बार फिर बताया कि ईरान की जानिब से फौरी तौर पर न तो एटमी हथियारों की तैयारी का कोई खतरा था और न ही ईरान से अमरीका पर 9/11 जैसे किसी बड़े हमले की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। उनका मानना है कि सदर ट्रंप को इस जंग में इसराइल ने घसीटा है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $115 फी बैरल की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं, जिनमें मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दफ्तर ख़ारजा ने भारत में तैनात इजरायली सफ़ीर के सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियो क्लिप में लगाए गए इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसराइली सफ़ीर की जानिब से की गई गैर हकीकी और बेबुनियाद किरदारकशी को सख्ती से मुस्तरद करता है। जारियत और गैर कानूनी तर्ज अमल का असल रिकॉर्ड सबके सामने है। गजा में जारी इंसानी अलमिया और गैर कानूनी तसल्लुत इसराइली रवैये का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने याद दिलाया कि आलमी अदालतों में इसराइली क़यादत के खिलाफ चलने वाले मुकदमात उनके इक़दामात की हकीकत वाज़े करते हैं। तर्जुमान ने वाज़े किया कि जिम्मेदार रियासतें बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करती हैं, इनसे तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात का सहारा नहीं लेती। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर की कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के मंसूबों की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में टोलेंटन मार्केट के आकब में कॉन्वेंट गार्डन और टोलेंटन मार्केट में ऑर्गेनिक कैफ़े बनाने पर इत्तेफाक हुआ। कॉन्वेंट गार्डन में सेमी कोड एरिया और दुकानें भी बनाई जाएंगी और 2 मंजिला ज़ेर ज़मीन पार्किंग तामीर होगी। इजलास में शाहरुखन गेट, तारंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदलने का फैसला किया गया। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहों समेत भाटी, मोरी, मोची, शाह आलम, यकी, मस्ती, दिल्ली गेट के इलाकों की अंदरूनी शाही गुजरगाहें भी तारीखी आबोताब के साथ बहाल की जाएंगी। इजलास में लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का भी उसूली फैसला किया गया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज अफगानिस्तान में फितना खारिज के खिलाफ जिहाद कर रही है। लाहौर में उलमा कराम के हमरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद सुफियान। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अफगानिस्तान से चंद लाइल्म लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा तमाम बरादर इस्लामी ममालिक के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के साथ ताउन की बातें करने वालों ने कभी पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमलों की मजम्मत नहीं की। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक काजी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ जिहाद का फतवा दे रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि फितनाए खवारिज और फितनाए हिंदुस्तान की मदद के लिए लोग आगे बढ़े। अगर बात फतवे की होगी तो फतवा कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया जाएगा तो वो शरीयत कहलाएगी, वो शरी फतवा कहलाएगा। जो जुल्म के खिलाफ हमारी फौज कर रही है वो जिहाद है, क्योंकि हमारी फौज की असास ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि 19 रोज से मस्जिदुल अक्सा बंद है। इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर समेत ईरानी अवाम शहीद हो रहे हैं, जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा एक गम की कैफियत में मुब्तला है। इस मौके पर उलमा हुसैन अकबर ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने की जरूरत है। दीगर उलमा कराम ने कहा कि कल जुम्मतुल विदा यौम वहदत के तौर पर मनाएंगे और ईद पर पूरी मुस्लिम उम्मा इत्तेहाद का पैगाम देगी। उन्होंने कहा कि काबरीन की कोशिश है कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कायम रहे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने राजौरी, डोडा, उधमपुर, पूंछ, कुपवाड़ा, बारामूला और दीगर अजला में महाजर और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी लाई है। छापों और तलाशी के बिलाजवाज कार्रवाइयों की वजह से हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है। भारतीय फोर्सेज ने जबरो इस्तबदाद की कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों का जीना दोभर कर रखा है। उनकी रोजमर्रा जिंदगी बदस्तूर
दरहम बरहम है। भारतीय पुलिस ने जिला सांबा में ऑपरेशन के दौरान एक बेगुनाह कश्मीरी मासूम अली के घर को भी कब्जे में ले लिया। मुहासिर तलाशी की मुसलसल कार्रवाइयों, छापों, जायदादों की जब्ती और दीगर इस्तेमाली हथकंडों ने इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने के भारतीय दावों की कलई खोल दी। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर चस्पा किए गए। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने जिला कठुआ में अदालत की तरफ से जमानत पर रिहा होने वाले 3 कश्मीरी नौजवानों की मुसलसल निगरानी के लिए उनके साथ GPS ट्रैकर नस्ब कर दिए हैं। भारतीय इंतजामिया जेल से जमानत पर रिहाई पाने वाले कई कश्मीरी नौजवानों के साथ ट्रैकर लगा चुकी है, जो शख्सी आज़ादी की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। और 23 मार्च के मौके पर खुसूसी प्रोमो में शहरियों ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपने अज़्म को दोहराया है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का वतन से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार। तेईस मार्च एक ख्वाब, एक उम्मीद का एक रोशन दिन था। हमारा पाकिस्तान हमारी पहचान है और हमें फख्र है कि हम इस आज़ाद मुल्क का हिस्सा हैं। 23 मार्च हमें सिर्फ करारदाद पाकिस्तान की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें उस अहद की भी याद दिलाता है जो हमने किए हैं। हम आज़ाद है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, ये आज़ाद निशानी है कि आज़ाद कौम का। 23 मार्च का दिन ईद वफा का दिन है। पाकिस्तान अल्लाह की अमानत है और हम उसके अमीन हैं। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है, तब से ख़वातीन का एक बहुत मेजर रोल रहा है। हमने हर सदी में, हर ज़माने में जो है मर्दों के साथ शाना बशाना मिल के काम किया है। स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में बहुत ख़वातीन की परसेंटेज है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा एक्सेल कर रही हैं। हमारे माशरे में हमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ताकि हम मर्दों के शाना बशाना अपने काम कर सकें। पाकिस्तान माज एक मुल्क नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और अज़्म की जिंदा अलामत है। पाकिस्तान डे के मौके पे मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक के साथ खड़ा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में। आज का पाकिस्तान यूथ का पाकिस्तान है। 23 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हम एज पाकिस्तानी यूथ जो हैं ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। I am willing to die for this country, sir. To be honest, Pakistan like love. चैलेंजेस जरूर हैं, मगर पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में खुद को संभाला है। अवाम और इदारे साथ हों तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम जो खुद हैं, हम जो सारे जवान हैं, ये अगर एक अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे तो हम एक मुल्क को बहुत अच्छी तरक्की पे गामजन कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्होंने फरमाया था कि आपने एक कौम और मुल्क को मिलत आगे बढ़ना है तो आपको चैलेंजेस का सामना होगा। हम इस पाकिस्तान को तभी मजबूत कर सकते हैं कि जब हम आपस में मुत्तहिद हों। We are no less than any other country in terms of technology, in terms of export, in terms of our economy. हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि किस तरह हमारे यूथ ने इकट्ठे होकर किस तरह दुश्मनों का मुकाबला किया। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में मजबूत दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, बल्कि डिजिटल, साइबर और मालूमाती मैदान तक फैला हुआ है। जैसे हमारी अफवाज सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही है, हम भी सोशल मीडिया पे उनके साथ खड़े हैं। ये पहला 23 मार्च है उस मार्का हक की कामयाबी के बाद। अब ये जिम्मेदारी अफवाज से हटके हर पाकिस्तानी के कंधों पे है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने मिलकर काम करना है। It makes me feel so blessed कि मैं एक ऐसी नेशन में पैदा हुई हूँ जहाँ पे I have the right to work according to my own choice and I can make sensible choices for myself. पाकिस्तान जिंदाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, कराची में गुज़श्ता रात होने वाली आंधी और तेज़ बारिश के नतीजे में छतें और दीवारें गिरने के बायस 19 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। आयशा आफरीदी की रिपोर्ट देखिए।
گزشتہ رات سے شہر قائد میں موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور آندھی اور طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ شہر کراچی کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، تاہم بلدیاتی اداروں اور سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے زندگی کو معمول پر لانے میں مدد ملی۔ بارش کے نتیجے میں بعض جگہوں پر بل بورڈز، دیواریں، چھتیں اور درخت گر گئے۔ ایدھی ذرائع کے مطابق بارش سے اب تک 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی نے کراچی کے علاقے مجید کالونی کا دورہ کیا۔ چھت اور دیوار گرنے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 2 افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحومین کے لیے دعا کی، جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی مالی معاونت کا بھی اعلان کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بارش کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے میئر کراچی مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ شہر میں گرنے والے سائن بورڈز، درختوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جائے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ کو کمشنر کراچی کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں کیماڑی میں ہوئی، جو کہ 13 ہیں، جبکہ بل بورڈز گرنے سے بھی نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اب تک زیادہ تر جگہوں پر بل بورڈز اور درخت ہٹا دیے گئے ہیں، جبکہ نکاسی آب کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ سندھ کے دیگر اضلاع مٹھی، تھرپارکر، ٹھٹا، میرپور خاص اور دوسرے شہروں میں بھی دن بھر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات کراچی میں بارش کا ایک اور اسپیل متوقع ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے 4 صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور شمالی علاقہ جات میں برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ قومی شاہراہوں N50، N65 اور N70 پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہری زندگی اور ٹریفک کی روانی میں خلل پڑنے کی توقع ہے۔ NDMA نے تمام صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو الرٹ رہنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ اور گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ، تربت میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ اسلام آباد 26، لاہور 28، کراچی 32، پشاور 22، کوئٹہ 24، ملتان 29، سکردو 12، گلگت 18، مظفر آباد 23 اور سری نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور قانون انصاف کے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے خیبر پختونخوا بار کونسل کے وفد نے ملاقات کی اور مختلف ادارہ جاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ بار کونسل کی مضبوطی نظام انصاف کے مؤثر قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت بار کونسلز کے ترقیاتی منصوبوں میں بھرپور معاونت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات کے دوران بار کونسل کے جاری اور مجوزہ منصوبوں کے لیے حکومتی تعاون بڑھانے، وکلاء کو درپیش مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سینئر صحافی رانا ابرار خالد کے انتقال پر افسوس اور مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ رانا ابرار خالد مرحوم باوقار اور ذمہ دار صحافی تھے، جنہوں نے پیشہ ورانہ دیانتداری کے ساتھ صحافت کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ رانا ابرار خالد کی علالت کے دوران ان سے مسلسل رابطہ رہا۔ مرحوم کا انتقال صحافتی برادری کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل دے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کے زیر صدارت ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کا اجلاس پشاور میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی فلاح و ترقی پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، اس کے نتائج واضح نظر آنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے رورل اکنامک ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر عید کے فوری بعد تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ میزبان احسن خان اور جگن کاظم کی میزبانی ٹرانسمیشن نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ ذیشان احمد خان کی رپورٹ۔ 29ویں روزے کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ قاری اسامہ رحمان کی خوبصورت آواز اور تلاوت کلام پاک نے محفل کو پرنور بنا دیا۔ میزبان احسن خان نے ترجمہ پیش کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی گئی۔ علماء کرام میں رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کے موضوع پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ پاک وطن رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کیا۔
ٹرانسمیشن میں اداکارہ ہما میر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور نعت پڑھی۔ ٹرانسمیشن میں اداکار تنویر آفریدی نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور اپنے کیریئر کے بارے میں بتایا۔ نعتیہ مقابلے نے ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے اور مقابلہ جیتنے والے نعت خوانوں کو انعامات دیے گئے، جبکہ شیف سمی عاصم نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی۔ بچوں کے سیگمنٹ میں میزبان احسن خان اور جگن کاظم نے اداکار تنویر آفریدی کے ساتھ مل کر بچوں کو سبق آموز کہانیاں سنائیں۔ ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کے حل بتائے۔ اذان مغرب کے بعد 29ویں روزے کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سپورٹس بلیٹن میں خوش آمدید۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ہاکی ورلڈ کپ کے میچز کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ قومی ہاکی ٹیم عالمی کپ میں اپنے سفر کا آغاز 15 اگست کو انگلینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ 17 اگست کو ویلز کے خلاف کھیلے گی۔ ٹورنامنٹ کا ہائی وولٹیج مقابلہ 19 اگست کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا۔ ہاکی ورلڈ کپ 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈ کے مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں 16 ٹیمیں شرکت کریں گی، جنہیں 4 پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی ٹرافی ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کرنے کے بعد پشاور پہنچ چکی ہے۔ ٹرافی کو شائقین کرکٹ کی توجہ کا مرکز بناتے ہوئے مختلف مقامات پر نمائش کے لیے رکھا گیا۔ بعد میں ٹرافی پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں لائی گئی، جہاں قومی کرکٹرز میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ PSL 11 26 مارچ سے 3 مئی تک 6 شہروں میں کھیلی جائے گی۔ 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی کی شمولیت کے بعد PSL 11 میں پہلی بار 8 ٹیمیں شرکت کریں گی، جن کے درمیان 44 میچز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے آفیشل اینتھم کے گلوکاروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ PSL 11 کے آفیشل اینتھم کے 5 گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ نامور گلوکار عاطف اسلم، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے اپنی پرفارمنس دی ہے۔ PSL 11 کے اینتھم کا تھیم بیٹ پر کھیلیں گے رکھا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ افطار ڈنر میں لاہور قلندرز کے آنر سمین رانا اور تمام مقامی کھلاڑیوں کی شرکت کی۔ زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رضا اور مینجمنٹ کے اراکین نے بھی افطار ڈنر میں شرکت کی۔ اسلام آباد میں لاہور قلندرز کا 3 روزہ کنڈیشننگ کیمپ لگایا گیا، تاہم تیسرا روز بارش کی نظر ہو گیا۔ لاہور قلندرز اسکواڈ کے اراکین 23 مارچ کو لاہور میں اکٹھے ہوں گے۔ پشاور زلمی نے PSL 11 کے لیے اپنی نئی کٹ زلمی نیکسٹ جن متعارف کروا دی ہے۔ یہ جرسی جدید دور کے نوجوانوں یعنی جن زی کے جوش کا عکاس کرتی ہے۔ زلمی نے اپنے روایتی رنگ کو الیکٹرک گریڈینٹ اور نیون شیڈز کے ساتھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ جرسی کو ایک جدید اور منفرد لک مل گئی ہے۔ پختون ثقافت کو ظاہر کرنے کے لیے جرسی کے کالر پر پختون زبان میں زلمی لکھا گیا ہے۔ جرسی پر موجود ہیکاگونل پیٹرن اور اتحاد ٹیم ورک کی علامت ہے۔ جرسی کے نچلے حصے میں موجود 3D گریڈز اور سائبر ٹونز ایک جدید اور فیوچرسٹک انداز دیتے ہیں، جو کہ ٹیم کی نئی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ Hexagonal matrix, which is very tactically designed to reflect the art of digital illustration and the fearless, energetic colors of Generation Z. اور ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔